So there will be some fair value if it is let out property. Okay. If it is let out property, there has to be some fair value. Okay. There should be some municipal valuation. Whichever is higher of this will be considered here, which is considered as C. So we compare with standard rent, whichever is lower, C or D, whichever is lower, will be your reasonable lettable value. We compare with actual rent received, then higher of this reasonable lettable value and annual rent will be your gross annual value. Minus municipal tax paid will be your net annual value. Less deduction under section 24, that is standard deduction, 30% of net annual value. And interest paid. So for interest, it is given that if the interest is taken other than SOP, entire amount will be allowed. But if it is SOP, in self-occupied property, and if the loan is taken up to 30th March 1999, then only 30,000 interest you will get as a interest benefit. If the loan is taken up to 31st March 2014, then 1,50,000. And after that, right now, if you are taking loan up to 2 lakh deduction, you will get. Okay. Then whatever is left out is your taxable income from house property. Addition. Beyond this, these two things may be possible. Unrealized rent received now, of course, it will be taxable. It will be taxable in all cases. Okay. If at all we will consider. Arrears of rent also, it will be taxable. And then after adding these two, whatever is finally received will be your final income from taxable income from house property. In deemed to be let out property, it will remain same. Okay. In deemed to be let out property also, it will remain same. Okay. Only the rent will not receive because it is not let out. But there will be some fair rent, there will be some municipal valuation. उसके basis पे आपको taxability आएगी. And you will be liable to pay to the government. It's self-occupied property, as I told you, under section 25, the net annual value itself will be nil. Net annual value nil है. So of course, standard deduction will be nil. This value will also be nil. क्योंकि zero का अगर आप कुछ भी लेते हो, it will be zero only. But there will be interest on bank loan. और वही interest आपका taxable income आएगा, which is in negative. ठीक है ना? तो आपका income negative में आ जाएगा. That is the benefit you are getting. And that can be set off with any positive income. VLOP I will teach you later on. उसमें दो टाइप का gross annual value मिलता है. That I will take it up later on. इसमें कोई doubt आपको? If not, then we can proceed for the question. Tell me. Okay. So now let us go to the question. Once we do few questions, you will realize. Okay. Question number 5 is very important. Okay. Rakesh furnishes following particulars in respect of his house properties let out, यानी सारे properties let out है. उनके पास 5 property है, वो पांचों का पांचों उन्होंने let out कर रखा है. Okay. For the previous year 2021, determine his net income. Annual value, not income, only the annual value for assessment year 21-22. तो ये प्रॉपर्टी E है, F है, G है, H है, सबका वैल्यू रुपीस में दिया है. E के लिए म्युनिसिपल वैल्यू 4 लाख है, फेयर रेंट 4,20,000 है,
स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेट कंट्रोल एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया हुआ है, एनुअल रेंट रिसीवेबल है, एनुअल रेंट रिसीव्ड है, नेट ऑफ अनरियलाइज रेंट। मतलब देखो यही मैं बोल रहा था, रिसीवेबल इज 3,60,000 बट एक्चुअली दे गॉट ओनली 3 लाख, तो हम लोग 3 लाख कंसीडर करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स समटाइम पेड है, समटाइम पेएबल है, समटाइम पेड बाय टेनेंट है, समटाइम डिस्प्यूटेड है, इसके हिसाब से आपको म्युनिसिपल टैक्स कंप्यूट करना है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. योर क्वेश्चन नंबर 5, इससे आपका जो मैंने ये फंडा बोला है सब क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं, एलओपी, बाद में अदर एस्पेक्ट्स देखेंगे। ओके, यस और नो, टेल मी। Yes. Okay, let us go to this question. देखो, again it is textbook page number 127. This format will remain constant, I told you. Yes, your assessment. Chalo. Now I need your support. Okay. What is the fair rent given for let out property? These all are let out property, huh? What is the fair rent given in your textbook? 4,20,000. ठीक है? Fair rent is given 4,20,000. Yes, sir. Municipal valuation is how much? 4 lakh. Municipal valuation is given 4 lakh. Okay. तो आप क्या कंसीडर करोगे? Municipal value and fair rent, whichever is Higher. higher. तो याद रखना, salary and other places was whichever was lower. In house property आपको क्या याद रखना? Whichever is higher. Higher. Okay. So here it is higher. How much? 4 lakh. 4,20,000. वही ले लेंगे हम लोग। फिर स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है, कितना है? 3,50,000। 50,000. 3,50,000। अब क्या करेंगे बेटा? Now this 420 and 350, whichever is low, whichever is low. Low. तो क्या आएगा बताओ? 350 आएगा या 420 आएगा? अदर स्टूडेंट, दिस इज वेरी बेसिक थिंग, इतना तो आप आंसर दे ही सकते हो। टेल मी। 420. 420 और 350, whichever is low, lower of C or D? 3,50,000. 3,50,000, इतना तो बोलो। This will be 3,50,000. Now, एनुअल, तो एक चीज ये आ गया मेरे पास। अब इसको कंपेयर करूंगा एनुअल रेंट रिसीवेबल से, रिसीव्ड से। तो एनुअल रेंट रिसीवेबल कितना था बेटा? Receivable 3,60,000. 3,60,000 था सर। और एक्चुअली रिसीव कितना हुआ बेचारे को? 3 lakh. सिर्फ 3 लाख। सर रिसीवेबल तो 360 था, बट एक्चुअली रिसीव्ड उसको हुआ सिर्फ 3 लाख। तो एक्चुअल हम क्या लेंगे?
360 और 3 लाख? 350. No, 3 lakh. Okay, we are going to consider actual rent received. Okay, kitna? 3 lakh. Suppose unrealized rent is there, then we are going to consider only 3 lakh, not the rent receivable, but actually rent received. ये amount ही नहीं लेंगे. So now 350 or 3 lakh, whichever is higher, of course, 3 lakh will be considered. 350,000. 3,50,000 will be your gross annual value. क्या आ गया ये? Gross annual value. इस क्वेश्चन में क्या तक पूछा हमको? सिर्फ नेट एनुअल वैल्यू तक पूछा है. ठीक है, तो आपका नेट फिर क्या करेंगे हम लोग? चेक करेंगे म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड किया. देखो 40,000 40. दैट विल बी डिडक्टेबल. तो सर इसमें से सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स पे कर देंगे, तो नेट एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू कितना आएगा? 310,000. will be my answer. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? सर थोड़ा सा. अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे. आया सर. दूसरा करेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा. ऐसे 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, इसके लिए तो मैंने ब्रेक ही नहीं दिया. नेक्स्ट एफ में देखते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट. तो फेयर रेंट कितना दिया देखो बेटा? 70,000. 3,70,000 दिया सर. म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया है? 3 lakh. 3 लाख दिया है. अब अदर देन सचिन कोई बोलेगा तो ही मैं सुनूंगा. क्या कंसीडर करोगे? टी में क्या वैल्यू आएगा? कोई भी बोलो. 370. थैंक यू रीमा. तो सर विच एवर इज हायर आपने अभी बताया था, तो हमने ले लिया 3,70,000. 370. वेरी गुड. अर्जिता ने भी बोला. ठीक है, अभी स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ बेटा. कितना दिया है? 380,000. ठीक है, तो अभी दे दिया सर स्टैंडर्ड रेंट 3,80,000. देखो इसमें कम किया था, इसमें जास्ती दिया. अब क्या करोगे? 370 लोगे या 380? 370. अभी समझ में आया? ऐसे ही दिया रहेगा, आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है. मैंने आपको बताया ना, ये फॉर्मेट अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो हाउस प्रॉपर्टी में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा. मैं चैलेंज करता हूँ, पिछले 22 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ. इट इज मच, मतलब सैलरी से इजी हर एक टॉपिक है. और आप समझ भी सकते हो अभी तक हमारा सैलरी खत्म हुआ और बाकी 1 महीने में सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे. बाकी किसी टॉपिक में कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है. दे आर वेरी सिंपल टॉपिक. सारा कॉम्प्लेक्सिटी सैलरी में दे रखा है गवर्नमेंट ने, एंड दैट्स रिक्वायर्ड ऑल्सो. So how much you will take? 3 lakh? Tell me. 70,000. 3,70,000 I will take, sir. To be compare with, यहाँ भी देखो एनुअल रेंट रिसीवेबल कितना था? 480 था. एंड एक्चुअली कितना रिसीव हुआ उसको? 420. क्या कंसीडर करोगे, 480 या 420? 420. 420. कितना मुझे एक्चुअली मिला, तो सर हम कंसीडर करेंगे 420. तो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा बेटा? 370 या 420? 420. समझ में आया? फिर ये और ये इसमें से जो ज्यादा हो. ठीक है, तो इस केस में ये ज्यादा था, इस क्वेश्चन में ये ज्यादा है, ये आ जाएगा सर. फिर देखेंगे म्युनिसिपल टैक्स के बारे में क्या दिया है. 36,000 तो है सर, लेकिन इट इज पेएबल. पेएबल चलेगा क्या? नहीं सर. नहीं चलेगा. तो सर म्युनिसिपल टैक्स उसको मिलेगा ही नहीं.
तो नेट इनकम कितना हो जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा? 420. 4,20,000. अभी समझ में आया? सर जो पेएबल है क्या उसको नील होता है? यही तो लिखा है ना, क्या लिखा है? और मैंने ये भी बताया था कि जब भी प्रोफेशनल टैक्स जैसा किया था वैसा ही यहाँ भी है, आउटस्टैंडिंग नॉट अलाउड। एंड यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, इट शुड बी पेएबल बाय और पेड बाय ओनर ओनली। अगर टेनेंट ने पे किया तो भी नहीं मिलेगा। दिख रहा है तेरे को? तो हाँ सर। आउटस्टैंडिंग भी नहीं चलेगा और पेड बाय टेनेंट भी नहीं चलेगा। ओके सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. थैंक यू। नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट, और मजा आएगा। जी में क्या दिया हुआ बेटा? फेयर रेंट कितना है? 180. म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया है? 150. 150। क्या कंसीडर करोगे? 180. तू नहीं बोलने का रे, बाकी बच्चे को भी पढ़ना है, उन्होंने भी पैसा दिया है। अदर देन सचिन, व्हाट यू विल कंसीडर? 180. 180, sir. वेरी गुड। फिर देखो स्टैंडर्ड रैंक दिया हुआ है, हाउ मच? 170. 170। अब क्या लेंगे बेटा? 170. अभी समझ में आ गया आप लोगों को? 170. अभी समझ में आया यस सबको? सर। तो हाँ, ये सर। जरूरत ही नहीं है। फिर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल था 244, एक्चुअली मिला उसको 2,04,000। तो आप क्या लेंगे? 2 lakh 4. 2,04,000. तो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 2 lakh 4. वेरी गुड, 2,04,000. और वेरी गुड। अभी नाउ सर इसमें म्युनिसिपल टैक्स तो दिया हुआ है बट इट इज गिवन पेड बाय टेनेंट, मिलेगा क्या? नहीं. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. नहीं. म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट मिलेगा क्या? नहीं सर. नहीं मिलेगा। यहाँ बहुत क्लियरली मैंने लिखा हुआ है, इट शुड बी पेड बाय ओनर ओनली। तो इस बार भी नहीं मिलेगा। तो इनकम कितना होगा बेटा? सॉरी, नेट एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 lakh 4,000. ओके, नेक्स्ट। अभी आप खुद से करो और मुझे बताओ, एच वाला खुद से करो और मुझे बताओ कि सर इसका नेट वैल्यू इतना आएगा, क्विकली। देन विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। You have only 5 minutes.
सर हो गया। क्या आंसर आया बेटा? नेट NAV का आया 2,60,000। एनीवन एल्स हु गॉट द आंसर? सर हाँ So देखते 2,04,000. एच का मैं पूछ रहा हूँ। 2,40,000. सिर्फ सचिन को राइट आंसर आया, वाई? Sir, disputed नॉट अलाउड। ये minus नहीं होगा ना, डिस्प्यूटेड मतलब नहीं है ना। डिस्प्यूटेड में आप क्या देते हो पैसा? नहीं. तो फिर मतलब आउटस्टैंडिंग ही हो गया ना। हाँ. तो फिर तो क्या आंसर आ रहा है बताओ? 2,50,000. 2,60,000. The right answer is Sir, 2,60,000. 2,60,000. हाँ, Yes, 2 the lakh. right answer is 2,60,000. अब वेरीफाई करो कहाँ का एरर किया तुम लोगों ने। पेरेंट क्या था? 260। 260. 260। हम लोग लिखेंगे 260। एक्चुअल रेंट कितना था? 2 lakh. 2 लाख। 2 lakh. हम लोग लिखेंगे 2 लाख। 260. यस 260। तो सबको आ गया रे बाबा। हाउस प्रॉपर्टी खत्म। कल से दूसरा टॉपिक। इसके आगे कुछ नहीं है। इसी का 30% था डिडक्शन और उसी में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो हो गया नेट टैक्सेबल इनकम। यही एक लॉजिक था जो सिखाना था मुझे। ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट कल नया टॉपिक सर। तो थोड़ा प्रैक्टिस करो। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है? 2,80,000. 2,80,000. 2,80,000। तब क्या लोगे बेटा? 260. 260। गुड। 240. 290 और 240? 240 is the right answer sir. 240। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? 260। 260. 260. जी सर। और म्युनिसिपल टैक्स मिल समझ में आ गया? यस सर। अब फटाफट और एक क्वेश्चन Yes, करते हैं सर, और एक क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा। लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अभी मैं हेल्प नहीं करूंगा पर ये तो उसी का आंसर था। यही आंसर आया अपना भी, ये है ना बेटा? हाँ सर। Yes, sir. हम लोग देखेंगे वीरेंद्र सहवाग जी को। मिस्टर सहवाग owns a house property in Malad, SV Road. He let out this property to Mr. Yuvraj, who has occupied for his business. किस पर्पस से लेता, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आपको पता है बहुत सारे हाउस प्रॉपर्टी में मेडिकल डॉक्टर लोग भी बैठते हैं। बहुत सारे हाउस को लेके अगर आपका ग्राउंड फ्लोर पे है तो भी बिजनेस करते हैं। ये सब नो देखा है आपने कभी? Yes. है ना? किचन में Yes. गोडाउन बना दिया, बेडरूम हॉल को मिला के ऑफिस बना दिया, ऐसा देखा आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ, एक Yes, sir. बेडरूम में रिसेप्शनिस्ट को बिठा दिया, ऐसा चलता है। कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन 16, डेट ऑफ कंप्लीशन 17। ओके, दिया हुआ है रेटेबल वैल्यू, मतलब म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है कितना? 150। फेयर रेंट 160, रेंट पर मंथ 15,000, अनरियलाइज्ड रेंट 15,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल जो उन्होंने म्युनिसिपल टैक्स भरे हैं पिछले तीनों साल के 8,000, 12,000 और 12,000। आपको क्या लगता है इसका तुमको म्युनिसिपल टैक्स पेड में मिलेगा कि नहीं? Yes, sir. मिलेगा, क्योंकि उस साल आउटस्टैंडिंग था तो उनको नहीं मिला था, इस साल पे किया तो उनको मिलेगा ना बेनिफिट। ओके। इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्स, ये ऐसा कोई हेडिंग था क्या हमारे फॉर्मेट में? नहीं. नहीं. क्या? तो नहीं आएगा। ये था क्या? एक्चुअल रिपेयर
ऐसा कोई नहीं, हेडिंग sir. था? नहीं। एक्चुअली No, sir. अर्लियर ना हम लोग को आउट प्रॉपर्टी में सारी चीजें याद करनी पड़ती थी। मैं तो उस जमाने से टैक्स देख रहा हूँ, जो आप लोगों को टैक्स का मीनिंग भी नहीं समझता था, तब से पढ़ा रहा हूँ। एंड दैट टाइम दिस टॉपिक वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यही सब चीज को मिला के गवर्नमेंट ने क्या बोला है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में दे देता हूँ, आप उसमें से रिपेयर करो, रिनोवेशन करो, जो करना है प्रॉपर्टी में करो, और मैं आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना दूंगा बेटा? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। कितना दूंगा? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। उससे जास्ती नहीं मांगने का। और दूसरा क्या दूंगा? इंटरेस्ट। बस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इससे में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में ये दो चीज आ सकते हैं, क्या? अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट। क्लियर है? यस सर। यहाँ भी उसने यही सब चीज दिया जिसको इग्नोर करना है। इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ लोन मिलेगा कि नहीं? इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? देखो इंटरेस्ट सब चीज के लिए मिलता है, Yes, sir. कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन, सब चीज के लिए तुमको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। ठीक है? एंड दिस इज लेट आउट प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा मिलेगा। कितना मिलेगा? हाउ मच बेनिफिट ही विल गेट? 51 plus 9 outstanding 51. plus 9 outstanding 60,000 पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। कहना मेरे को आंसर। अभी क्या करूंगा, मैं लिखूंगा, आप लोग भी मेरे साथ लिखेंगे और लिखेंगे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 128। ठीक है? नेम ऑफ एसएससी सहवाग, लीगल स्टेटस इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ठीक है? यस सर। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और एक कंसेक्यूटिव सेशन लूंगा तो आपका 80% सिलेबस हो जाएगा। कल इसको देके होमवर्क खत्म। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है? अब बताओ फेयर रेंट कितना दिया है बेटा? फेयर रेंट कितना दिया है देखो। 1,60,000. आप क्या लेंगे उसको? 1,60,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया बेटा? 1,50,000. वेरी गुड सर, 1,50,000 दे दिया है। तब क्या लोगे बेटा बताओ? 1,60,000. 1,60,000. whichever is higher 160 ले लेंगे सर। स्टैंडर्ड रेंट दिया है क्या कहीं? स्टैंडर्ड रेंट दिया है क्या? नहीं देगा ना। मलाड को स्टैंडर्ड रेंट को जरूरत ही नहीं है, म्युनिसिपल रीजन में ही आता है, तो वी विल इग्नोर दैट। ठीक है? 160 आ गया। एनुअल रेंट रिसीवेबल क्या है? ये सारा चीज आप फिर लिखेंगे नहीं आपके आंसर में। Am I right? These are not applicable. आपको लिखना ही नहीं है। ये दो चीज नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. पूरा का पूरा निकाल देने का। ठीक है? फिर एक्चुअल रेंट रिसीव, हमको वो ढूंढना है बेटा इसमें। 1,80,000. 1,80,000 कैसे निकाला बेटा? 1,80,000 Sir, 15,000 into 12. वेरी गुड। तो सर मेरे को ना एक्चुअली रिसीवेबल है 1,80,000, बट इज देयर एनी अनरियलाइज्ड रेंट बेटा? Yes, sir. तो देखो यही मैं बोल रहा था सर, रिसीवेबल तो था बट अनरियलाइज्ड रेंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 15,000. तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट 165 लिख सकते हैं। ये दोनों में से क्या लेना है आपको? 180 लेना है या 165 लेना है? 165. यस 165 ले लेंगे सर। अब बताओ ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? तो 180 तो इमटीरियल है मेरे लिए।
हाँ 165 है। 5. म्युनिसिपल टैक्स लेस म्युनिसिपल टैक्स सर, कितना म्युनिसिपल टैक्स आएगा बेटा? 29। मिलेगा बेनिफिट उसको? यस जी सर, यस सर। यस सर। तो नेट एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 136। गुड। अब सर डिडक्शन 24 का भी लेना पड़ेगा आपको, कितना ले लो बेटा? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। 30%। कितना आएगा बेटा? 40,800। 40,800। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिया था बेटा आपने? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया है बताओ? 60,000। सर 60,000। वेरी गुड। तो टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा बेटा हाउस प्रॉपर्टी से? 35,200। बोलो कितना आसान है। तो मेन कॉम्प्लेक्स किधर है? यही पार्ट में था ना बेटा। अगर आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लिया, आपका किस्सा ही खत्म हो जाता है। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा, उसका 30% लेंगे और लोन लेंगे, आ गया टैक्सेबल। हाँ या ना? हाँ Yes, sir. एकदम इजी है, बहुत इजी है। और कब लगेगा जब और 3-4 क्वेश्चन करेंगे सर, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो मैं आपको बोल सकता हूँ सर हाँ इजी है। इसलिए अभी मुझे मौका दीजिए कि मैं और 3 क्वेश्चन कर सकूं। ठीक है, उसके लिए तो अभी इमीडिएटली नहीं होगा, आपको वापस इसी लिंक पे ज्वाइन होना पड़ेगा एंड वी विल टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन। यही आंसर आया ना बेटा? देखो तो इसका यही आया ना, वर्किंग वगैरह करके दिया हुआ टेक्स्ट। ठीक है, हाँ सर। अब क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 7 करेंगे। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए वापस विद द सेम लिंक। एक्स्ट्रा लेक्चर है क्या? सब एक्स्ट्रा ही आज, 2 की जगह पे 3 लेक्चर लेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है सर। अटेंडेंस मिलेगा, नो वरी। सर आपका अटेंडेंस शो नहीं करता है। आएगा ना बेटा, तो करेगा। मैं जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन अपलोड करता हूँ।